Hello friends, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So today we will see the herbal activity increased remedy. In herbal activity, sir has given activity increase in talkativeness, in singing, in verses makes. That is we call verbal activity increase. So in verbal, there are three types of activity increase: singing, verses makes, and loquacity. Singing, it contains three remedies: belladonna, veratrum album, opium. And verses makes having cannabis indica, lachesis, coffea, antimcrude, and nitromure. So loquacity, it's having 6 types. So in acute, Dr. Vijayakar sir has mentioned 6 types of loquacity, that is fast loquacity, irrational loquacity, business loquacity, nonsense loquacity, one subject loquacity, and curses. So having different remedies, so we will see one by one. So every remedy, इसके पहले जो हमने देखा था तो सर ने पॉइंटर्स दिए थे. नाउ सर हैज एक्सप्लेन दिस रेमेडीज इन अ शॉर्ट वे. सो द फर्स्ट रेमेडी, दैट इज बेलाडोना. बेलाडोना का सर ने यहाँ एक एग्जांपल भी दिया, एक सिंपल केस भी दिया कि हाउ द पेशेंट वाज टॉकिंग लाइक अ सिंगिंग पैटर्न. सो belladonna, the chief symptoms are redness, congestion, suddenness, and desire for lemonades. The desire for lemonade with such a singing will point towards belladonna. So every word patient is talking in a rhythm, like a singing. So the songs sung are usually in loud voice. तो इस टाइप से बेलाडोना खुद को प्रेजेंट करेगा इन एक्यूट कंडीशन, इन वर्बल एक्टिविटी इंक्रीज सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल सर ने यहाँ बहुत ही अच्छी एक सिंपल केस दी है. अ डॉक्टर हु वाज ट्रीटेड बाय अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड फॉर whom I was also consulted developed suddenly side effect of Norflox antibiotic taken for some infections. तो ये एक केस थी, डॉक्टर नरेंद्र मेहता सर की ये केस है जिसमें सर ने बहुत ही सर को टिपिकल ऐसे स्पेसिफिक कुछ तभी अलग रिमार्केबल इस केस में सर को दिखा. तो सर ने विजयकर सर को फोन किया कि इस टाइप की केस आई है. And this condition, this situation comes because of Norflox antibiotics. Some urinary tract infection was there, and that patient takes Norflox antibiotic for that infection. And after Norflox, patient having the side effect, which side effects are generally found after Norflox was psychosis. Norflox का ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है. तो ये हर पेशेंट को नहीं होता है, लेकिन जो पेशेंट सेंसिटिव है नॉर्फ्लॉक्स
केमिकल को, उसको ही ये सिम्टम्स दिखेंगे. The 60-year-old doctor started talking continuously in a loud voice. The talk was so continuous that people hearing it would be tired, but the patient was not. Yes. तो मतलब इतना टॉकिंग होता है कि आजू बाजू वाले जो वहां पे प्रेजेंट है वो थक जाएंगे, लेकिन पेशेंट नहीं थकता है. इतना लाउड टॉकिंग, इतना एनर्जेटिक टॉकिंग बेलाडोना का होता है. और ये सब कुछ सडन फास्ट शुरू होता है. दिस वेंट ऑन थ्रू आउट द नाइट, बट पेशेंट नेवर टायर्ड. कंटिन्यूअस रात भर थ्रू आउट द नाइट that patient was talking non-stop. When I visited him, his face was flushed. And on seeing me, he started. देखो, जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा, मतलब विजयकर सर को देखा, and he started talking like, Praful bhai, how are you? How are you? How are you? Every question or sentence was being talked in a rhythm, like a singing. ना, तो इस टाइप से उसने टॉकिंग स्टार्ट की. विदाउट वेटिंग फॉर रिप्लाई, सर कुछ बोले, ही वेंट ऑन खुद ही, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन. So this is like a singing. A dose of belladonna 30 administered by my friend Dr. Mehta and cured him completely, to the surprise of the hospital authorities who were treating him in vain. Yes, the hospital authorities को जहां पेशेंट एडमिट था, उन्हें भी नहीं समझ में आया कि ये साइकोसिस कहां से स्टार्ट हो गया. So after one dose of belladonna, he cured completely. पूरी सिचुएशन चेंज हो गई. So this is the belladonna, and this is like singing situation. Then stramonium. Stramonium always having panic in dark. जैसे कि स्टैमोनियम पेशेंट एक रूम में बैठा है, आजू बाजू में लोग भी है, और अचानक करंट चले जाता है, लाइन चली जाती है, तो पेशेंट जोर से चिल्लाएगा, दिस इज पैनिक इन डार्क. ओह, ये क्या हुआ, फट से किसी को तभी पकड़ेगा. दिस इज पैनिक इन डार्क. एवर्जन टू ब्राइट लाइट आल्सो. सिंगिंग और टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट. यस, जो भी टॉकिंग होगा ऑन वन सब्जेक्ट पर्टिकुलरली. ऐसे वन सब्जेक्ट टॉकिंग और कौन से रेमेडी में होता है? दैट इज कैनेबिस इंडिका. कैनेबिस इंडिका में जो टॉकिंग रहेगा वो वन सब्जेक्ट, दैट इज द साइंस. चिली, थर्स्टी, फेस डल, एंजियस, पैनिक स्ट्रिकन. यस, कुछ भी हुआ, इतना घबरा जाता है, इतना पैनिक होता है पेशेंट, जैसे स्टैमोनियम. देन ओपियम. Opium, it is hot, singing, sleep overpowering, sleep difficult to awaken or disturbed by slightest noise. Yes, एक तो इतनी नींद होगी कि जगाना मुश्किल, या फिर इतनी गहरी नींद है फिर स्लाइट नॉइज से भी पेशेंट जाग जाता है. दिस इज द ओपियम. No complaints, contained. Yes, no complaints at all. Very contained elements from fright, fear, and heart patient. This is opium. Then Veradram album. It is also acute remedy. Veradram album also having singing quality. Lows limonades or cool repressing drinks. Yes. तो लॉज लिमोनेट्स. लिमोनेट देखो बेलाडोना में भी
डिजायर फॉर लिमोनेड है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, देन वेराड्रम एल्बम में भी लिमोनेड डिजायर है, but also veradrum also likes cool refreshing drinks like cold drinks, all types of cold drinks. Chili in collapse condition or perspiring condition, hot otherwise, yes. So veradrum, it is chilly in acute, hot in chronic. Haughty, hopeful, slanders, curses at the same time praise, yes. Slander, किसी की भी निंदा करना, this is slander. और कर्सेस एट द सेम टाइम प्रेज, यस। तो जैसे कि ये पेशेंट कैसे बात करते हैं, कर्सेस भी होगा एंड एट दैट सेम टाइम प्रेइंग भी होगा, कि जैसे कि पेशेंट बोलेगा कि उसका कभी भला नहीं होगा, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे फंसाया, उसने मेरा नुकसान किया, उसको मतलब उसका कभी भला नहीं होगा, उसके साथ भी ऐसा ही होगा, उसका भी नुकसान होगा, लाइक दिस। और अगेन, जाने दो, भगवान भगवान उसका भला करे, मेरे साथ जो हुआ हुआ, भगवान उसका भला करे। दिस इज कि कर्स भी करेगा और एट द सेम टाइम प्रेज भी करेगा, यस। प्लीज प्लीज म्यूट रखिए खुद को, यस। डॉक्टर नरेश, आप म्यूट कीजिए, ओके। तो ये रेमेडीज है सिंगिंग के लिए। नाउ वर्सेस मेक्स, वर्सेस मेक्स में पेशेंट कुछ शेरो शायरी करेगा, कोई गाने टाइप कविता बोलेगा, पोएम्स बोलेगा, दिस इज वर्सेस मेक्स। कुछ चुटकुले बताएगा, लाइक दिस। सो कैनेबिस, इसमें फर्स्ट रेमेडी इज कैनेबिस इंडिका। कैनेबिस इंडिका इज वेरी vivacious remedy, like veradrum also. Veradrum also vivacious remedy. Speech, laughs, vivacious speech and laughs. तो कंप्लीट इम्बैलेंस स्टेट होती है कैनेबिस इंडिका। Talks on one subject, especially science, continuously talking on science, makes verses chilly plus vivacious. This is cannabis indica. Then lachesis, lachesis also having verses makes, आपने देखा होगा lachesis में, lachesis ड्रग पिक्चर आपने जब पढ़ा तो पेशेंट किस टाइप में बात करता है, different types of loquacity, types of talking lachesis में होते हैं, उसमें वर्सेस में भी एक क्वालिटी होती है। सो हॉट, थर्स्टी प्लस थर्स्टलेस, सेंसिटिव टू क्लॉज, टचिंग थ्रोट, एवर्स टू टाइट क्लॉथ। सेंसिटिव टू क्लॉथ्स, बॉडी के ऊपर क्लॉथ्स के लिए सेंसिटिविटी होती है, कपड़े के लिए सेंसिटिविटी होती है, और पर्टिकुलरली स्पेशली फॉर टाइट क्लॉथ्स, टाइट क्लॉथिंग, क्लॉथ्स, ड्रेस around the neck and around the waist. Averse to touch, yes, touching is also aggravated him, particularly at the throat. Then averse to tight clothing, yes. Worse, sleep during, yes. All complaints of laches is worse during the sleep or after the sleep. इसलिए लैकेसिस के पेशेंट, अगर छोटा बच्चा लैकेसिस का है तो सुबह उठते बराबर रोना शुरू करेगा, उठते बराबर खांसी स्टार्ट, उठते बराबर उसके कंप्लेंट, फीवर, ये वो स्टार्टेड होता है। दिस इज लैकेसिस। जेस्टिंग ऑन हिज ओन इलनेस, खुद के कंप्लेंट पे ही हंसेगा, सो दिस इज लैकेसिस। Then cophia.
Coffee is again a vivacious remedy because it is highly stimulant drug. So coffee is also vivacious, stimulants. Talks irrationally during fever. Yes. Particularly during fever, the talk is irrational of coffee. ये एक कॉफिया के पेशेंट में उन्माद सा भरा जाता है ड्यूरिंग फीवर और वाइवेशियसनेस आता है, बात भी करेगा तो इतना एक्साइट होके इतने जोर जोर से बात करेगा जैसे कि कुछ खाया, जैसे कोई ड्रग खाया, कोई स्टिमुलेंट खाया तो पूरा माइंड की सिचुएशन चेंज हो जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है। उसी टाइप में कॉफिया में भी है। कॉफिया भी patient during fever become vivacious and excited, talking irrational, and makes plans for future. मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूंगा, मुझे ये पॉलिसी निकालना है, मुझे घर बांधना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां। दिस इज द प्लान्स, और वो भी ड्यूरिंग फीवर। कुछ इलनेस आया कि ये मेक्स प्लान शुरू। टॉक ऑफ प्लीजेंट सीन्स एंड सराउंडिंग्स। टॉक्स ऑफ प्लीजेंट सीन्स एंड सराउंडिंग्स, तो उसके आजू बाजू में जो भी है, जो भी उसे प्लीजेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसके लिए टॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेक्स वर्सेस ऑन नेचर। यस, तो नेचर के ऊपर पोएम्स बनाना, वर्सेस बनाना, लाइक दिस। सो इजीली ओवरजॉयड, इजीली सैड, कभी खुशी कभी गम, लाइक दिस। बट से जॉयफुल रहेगा और नेक्स्ट मोमेंट सैड, यार वैसा हुआ था बात, लाइक दिस। सो दिस इज द कॉफिया, चेंजेस द मेंटल स्टेट automatically, easily. This is कॉफिया। इसीलिए आप देखो, जैसे कि जो पेशेंट एकदम नर्वस होते हैं तो पट से कुछ स्टिमुलेंट लेंगे, कॉफी लेंगे एंड फील्स जॉय। दिस इज कॉफिया। तो यही सेम कंडीशन डिजीज में होती है। देन एंटीक्रूड। एंटीक्रूड, इट इज वेरी सैड रेमेडी। So, though chili aggravated by sun, desire sore which aggravates, aversion milk, gastric disturbances, बहुत ही gases, disturb digestion, aversion to people. That's why anti-crude also likes aloneness, oversensitive and sentimental. ओवर सेंसिटिव एंड सेंटिमेंटल, ये जो सेंटिमेंटल है, दैट्स व्हाई आफ्टर सेंटिमेंट पेशेंट बिकम नर्वस, है ना। कुछ भी हुआ तो सेंटिमेंट बीच में आ जाते हैं इसके, एंड मेक्स वर्सेस। और सेंटिमेंट जब आते हैं तो उस पे पोएम, सॉन्ग लिखना शुरू, बोलना शुरू। और पर्टिकुलरली एंटीमाई से पेशेंट होते हैं कि अकेले में जाएंगे और अपना डायरी लिखेंगे या फिर पोएम लिखेंगे या फिर वर्सेस लिखेंगे। दिस इज एंटीक्रूड। ये पेशेंट ओबेज होते हैं और हैविंग वाइट टंग, दिस इज एंटीक्रूड। तो इतने ड्रग्स हैं, इतने मेडिसिन है, मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज, वर्बल एक्टिविटी इंक्रीज। सो the small chapter, last chapter is no change. No change सर ने जो लास्ट में लिया है, ये हमने एक्चुअली लास्ट में पीछे सेशंस में देखा है, फिर भी हम इसे रीड कर लेते हैं कि what is the no change in activity. There are certain conditions which do not change under the ravages of acute infections or illnesses. This means there is no change in activity of the patient. The patient has neither dull nor chilly, neither dull nor become hyperactive. Yes, for all practical purposes, their
Patients are the ones who tolerate their illness without complaining is no change. No complaint is due to various causes because the patient is containment, for example, opium. So no complaint because of containment is opium. No complaint because of patient is averse to PT sympathy is natriumate. And no complaint because of patient does not want others being disturbed, troubled for him, nor does he or she want to miss his duties like work, study, etc. is sedation. So natriumate, opium and sedation. तो कंटेंडेड है तो ओपियम, एवर्जन टू पीटी सिंपैथी है तो natriumate, एंड कंटेंडेड है बिकॉज ऑफ don't like to trouble others is sedation. So this is complete the medicinal part of this book, and the third part of this book is clinical hints. क्लिनिकल, जो हमें क्लिनिक में बहुत ये यूजफुल पार्ट है कि सर ने इसमें बहुत हिंट्स दिए हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा पेशेंट आता है, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो क्या करना चाहिए. तो क्लिनिकल पार्ट ऑफ दिस बुक कंटेन्स हेल्पफुल हिंट्स, केसेस, रेमेडी रिलेशनशिप चार्ट, hot and chilly remedies, thirsty and thirstless remedies, diligent and non-diligent remedies. So other helpful hints में सर लिखते हैं, there are times when certain presenting symptoms lead us to think of a particular group of remedies. These presenting symptoms form a strong basis for prescription of course by equating their generals and thermals with that of the patient. Yes. ये समझ में आए? जो भी पेशेंट कुछ सिम्टम्स हमारे सामने रखता है और एक्यूट के लिए वो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दिस प्रेजेंटिंग सिम्टम्स फॉर्म अ बेसिस ऑफ आवर प्रिस्क्रिप्शन. उसी सिम्टम्स के बेस पे हमें प्रिस्क्राइब करना है. इसीलिए हमारे सामने जब पेशेंट आता है तो हमारा पूरा ध्यान उस पेशेंट के तरफ होना चाहिए. पेशेंट किस तरह से सिम्टम बता रहा है, पेशेंट किस तरह से बैठा है, पेशेंट किस तरह से बात कर रहा है, पेशेंट क्या क्या बता रहा है, क्या क्या सिम्टम्स नैरेट कर रहा है, ये सब हमारा इसके तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए और उसी सिम्टम के बेस पे उसका एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन होगा. इसीलिए मोस्टली इसमें क्या क्या होता है, तो एक्सेसिव थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर मेक्स अस थिंक प्राइमरीली ऑफ. यस, तो पेशेंट अगर बातों बातों में बोलता है कि जब से बुखार है मैं बस पानी ही पीते जा रहा हूँ, इतनी प्यास लग रही, गला सूख के आता, पानी पीता, कितना भी पानी पियो तो भी जी भरता नहीं, मतलब उसने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी. और हम ऐसे हिंट्स, ऐसे सिम्टम्स जो पेशेंट हमारे सामने बता के चले जाता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, उसे मार्क नहीं करते. तो ऐसे अगर सिम्टम्स पेशेंट हमारे सामने दे रहा है, बोल रहा है कि एक्सेसिव थर्स्ट, तो उसमें चिली रेमेडीज कौन से होंगे? चिली रेमेडीज है एक्विनाइट, यूपेटिनम, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मेराडामल. दीज आर द वेरी एक्सेसिव थर्स्ट रेमेडीज. फिर इसमें सर ने वन पॉइंट ऐड कर दिया कि इफ द पेशेंट इज चिली हैविंग एक्सेसिव थर्स्ट प्लस एंग्री रेमेडी, तो इसके साथ अगर पेशेंट को एंगर है बहुत तो कौन सी रेमेडीज आएंगी? तो कैमोमिला, नक्सोमिका, कोलोसिन एंड हेपासल. These 4 remedies are very angry.
and presenting his anger in acute conditions with chilly and excessive thirst. Then hot अगर है तो natriumur, bryonia, sulfur, merxol and tuberculin. तो इस टाइप के हिंट सर ने यहाँ दिए हैं कि पेशेंट चिली है या फिर हॉट है, थर्स्टी है, और उसमें एक दो सिम्टम ऐड कर दे तो कौन से ग्रुप ऑफ रेमेडीज आपके सामने आएंगे. लाइक जैसे नो डिजायर टू ड्रिंक एट ऑल, कुछ भी खाने को पीने को दिल नहीं करता है तो पल्सेटिला, एपिस एंड ब्रायोनिया. थर्स्ट फॉर सिप्स ऑफ वाटर है कि एक एक घुट पेशेंट पानी पी रहा है और उसमें भी फिर सिप्स ऑफ वाटर में चिली भी है, हॉट भी है. तो चिली में आर्सेनिक, एंटिमटार्ट, नेट्रम आर्स, कोलोसिन, चाइना, इतने रेमेडीज, और हॉट में ओनली पल्सेटिला एंड सल्फर. अब सल्फर देखो, सल्फर हैविंग extreme excessive thirst but also having sips of water thirst. Then thirst for warm or hot drinks, तो इसमें लाइको, यूपेटोरियम पर and cascavella. Then nausea accompanied by a fever, one should think of natriumur first. Yes, तो natriumur ऐसी रेमेडी है कि it always having nausea during fever, nausea during abdominal pain also. So other remedies in differential diagnosis are ipecac, arsenic, eupatorium per, phosphorus, bryonia and sulfur. Then excessive vomiting accompanying the chip complaint. कुछ भी हुआ तो फर्स्ट वोमिटिंग, कफ आया वोमिटिंग, कोराइज हुआ वोमिटिंग, फीवर आया वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन है वोमिटिंग, लाइक दिस. So natriumur, eupatorium per, एंटिमटार्ट, इपिकेक. और भी ये 3 मार्क्स के लिए रेमेडीज है, और भी सर ने कम मार्क के भी रेमेडी याद दिए जैसे वेराट्रामल, कॉपिलस, सीना, कैमोमिला, लाइकोआर्स एंड फेक. Then other hint, fever with headache at vertex. Fever with headache at vertex, graphitis should be ruled out. ग्राफाइटिस में ये है ही नहीं, इसलिए ग्राफाइटिस कभी नहीं रहा. Then patients removing covers for some time and taking covers back again. This is the imbalanced state of camphor. Yes, so camphor is the remedy. Alternately with perspiring, weakness and a strong mental state is camphor. तो ऐसे पेशेंट बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं कैंपर से, जैसे कि पूरी इम्बैलेंस स्टेट होती है माइंड की और पेशेंट बिहेव्स लाइक अ, वो आपने देखा होगा कि सोडियम लेवल जब कम हो जाती है तो पेशेंट की कंडीशन कैसी होती है, स्टुपोरस कंडीशन होती है, जैसे कि स्टुपिफैक्शन की जैसी कंडीशन होती है कि पेशेंट ने कुछ नशा कर लिया तो पेशेंट किधर की किधर बात करेगा, समझ में नहीं आएगा, ऐसे डोलेगा, चलेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि मैं गद्दी पर से चल रहा हूँ, लाइक दिस. तो इस टाइप के अगर सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो दिस इज द इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड ऑफ कैंपर. कभी पेशेंट बोलता है फैन चालू करो, कभी बोलता है फैन बंद करो, लाइक दिस. तो ऐसी कंडीशन में कैंपर इज द बेस्ट रेमेडी. Children who insist on going to school is non-diligent, insist on studying and doing homework in high fever, which in normal condition they tend to neglect, should get one of the good boy remedy like aurum iode, aurum mate, silicia, ignitia, staphysagra, lyco, generous and thermals correspond. तो जिन बच्चों को पढ़ाई करने का बोलना नहीं पड़ता है, खुद होके पढ़ाई करते, इन द फीवर, बुक लेके पढ़ेंगे, इतना फीवर है बुक लेके बैठ जाएंगे पढ़ाई करेंगे, इज वो मे बी ऑरम हो सकता है, सिलिशा हो सकता है, इग्निशिया हो सकता है, स्टेपिसाग्रा हो सकता है या फिर लाइकोपोडियम. यस,
Children who are friendly with the doctor. Yes, देखो, children who are friendly with the doctor but become panicky and do not allow the doctor to touch or examine requires. Yes. So general thermal thrust correspond. This patient will be aconite, thuja, stramonium, lyco, ars, ambra, baraita, ipecac, antiптad and arzenicum nitrate. तो ऐसे ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं, इस टाइप से बिहेव करते हैं कि पेशेंट आएगा, एकदम आपकी क्लोज आएगा, आपके पास बैठेगा, आपके पास से जाएगा नहीं, पेरेंट्स सामने बैठे और पेशेंट आपके नजदीक. दिस इज फ्रेंडलीनेस ऑफ दैट पेशेंट. पॉइंट टू नोट. अभी आपको कुछ पॉइंट नोट करना है या फिर फिक्स माइंड में रखना है. सम ड्रग्स कैन बी बोथ चिली एंड both thirsty and thirstless, like arsenic and timtat, china, pulsatilla, apis, bella, and silicia. These are thirsty as well as thirstless. Thirsty in chronic and thirstless in acute illness like sina, calica, lachesis, bryonia, sulfur, tarantula, belladonna, and paretica. This is thirsty in chronic and thirstless in acute. Thirstless in chronic and thirsty in acute is ipecac, apis, pulsatilla, and timtat and china. तो ये पॉइंट्स बराबर ध्यान में रखना कि कौन से इसमें थर्स्टी इन क्रॉनिक है और कौन से इसमें थर्स्टी इन एक्यूट है. When a patient does not like to be questioned, when a patient does not like to be questioned about how are you feeling, this is called iota. What would you like to eat or drink, especially by his wife? Why you did not take your medicine today? If he is asked the same question twice and he expresses his irritability by frown or not answering, the remedies to be considered are Naxomica, acid phos, arnica, arsenic, golo, pulsatilla, and natrum. So this is called iota. कि एक बार बोला ना, एक बार पूछा ना, एक बार बताया ना, अब वापस रिपीट वही, तो चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, चेहरे गुस्सा आएगा, है ना, फ्रॉन आएगा, लाइक दिस. नाउ कालीज के लिए सर क्या कहते हैं? ऑल कालीज एंड सिलिशियास having anxiety disappearing during fever. No anxiety during fever or illness, except Kalikar. Kalikar having anxiety. देखो अब यहाँ पे पूरा ग्रुप स्टडी हो गया है ना. इस टाइप से स्टडी सर ने ऑलवेज एडवाइस की कि इस टाइप से स्टडी होनी चाहिए कि एट ए टाइम आपका पूरा ग्रुप स्टडी हो जाएगा कि ऑल कालीज एंड सिलिशियाज हैविंग एंजाइटी डिसअपियर्स ड्यूरिंग फीवर. ड्यूरिंग इलनेस नो एंजाइटी एक्सेप्ट कालिका हैविंग एंजाइटी. देन एंजियस. Sorry, Kali Rs along with other Kalis except Kalikar are anxious. Yes. So Kali Rs along with other Kalis except Kalikar. Kalikar में anxiety नहीं है, anxious नहीं है, have anxiety of health. Yes. But anxiety disappears during fever or illness. So anxiety about health is Kali Rs. Then Lyco has a anxiety about health disappearing during fever. Anxiety about health होती है, लेकिन फीवर जब आए नो एंजाइटी. एंजाइटी अबाउट हेल्थ है नाइट्रिक एसिड में ड्यूरिंग disappears during fever. Anxiety about health है सिलिशिया during fever disappears that anxiety. This is the anxiety होती है लेकिन during illness no anxiety. Then Baraita cells have hardly any anxiety about health. Why?
this Baryta carb and Baryta sulf don't have anxiety about health, but tremendous anxiety during cure. Otherwise, no anxiety about health. Generally, constitutionally, उनमें anxiety about health नहीं होती, लेकिन during fever, tremendous anxiety. That anxiety increases. Yes. Similarly, Sina, tuberculinum, ipecac have no anxiety about health, but increases anxiety during illness or fever. Natrum, less anxiety about health during both. So averse to consolation, yes. So less anxiety in natrums. Then anxiety in argenticum nitricum in general, but no anxiety of health and no anxiety during fever. Yes. Silent anxiety of health, where patient is just looking steadily and indifferent with his sepia. The sepia is totally indifferent to himself, is sepia. So these are the points. इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये पॉइंट्स बहुत इजी है, सिंपल है, बट इसके लिए आपको कंटिन्यूसली रीडिंग में रहना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, तो ये माइंड में फिक्स बैठ जाएंगे. सो इजी वे टू रिमेम्बर थर्स्टी एंड थर्स्टलेस रेमेडीज. अब कैसे, कौन से रेमेडीज थर्स्टी है, कौन से रेमेडीज थर्स्टलेस है? परसों शायद एक किसी डेलीगेट ने ये क्वेश्चन किया था कि ये चिली कौन से हैं, हॉट कौन से, कैसे ध्यान में रखना. तो यही क्लिनिकल पार्ट है जिसमें से हमें वो सीखने को मिलेगा. तो मोस्ट ऑफ द रेमेडीज आर थर्स्टलेस, मोस्ट ऑफ द रेमेडीज आर थर्स्टी. तो ये कौन से, तो इसके पढ़ाई, इसकी स्टडी, इसको हमने माइंड में अगर सर ने दिए हुआ इस पैटर्न से रखते हैं तो पूरा ग्रुप का ग्रुप एकदम लर्न हो जाता है. तो जैसे कि कौन से रेमेडीज थर्स्टी एंड कौन से थर्स्टलेस है, जैसे कि मोस्ट कार्बन्स एंड कार्बोनेट्स आर थर्स्टी. मोस्ट ऑफ द कार्बन्स एंड कार्बोनेट्स आर थर्स्टी. अब देखो जितने भी कार्बोनेट्स है, कलक्रिया है, कलक्रिया कार्बोनेट के फॉर्म जैसे कि कार्बन्स है, कलक्रियाज है, देन कार्बन की जितने भी अदर आयंस है जैसे कि कार्बोवेज, कार्बन सल्फ, कार्बन एनोमेलिस, कार्ब एसिड, ग्राफाइटिस, क्रियोजट, पेट्रोलियम, all are thirsty. And carbonates like calcarea carb, kali carb, mag carb, natrum carb, ammonium carb, these are also thirsty remedies. So most of the carbons are thirsty, most of the carbonates are thirsty. Then most polycrest. अब इसमें देखो, इसको भी हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं कि जैसे सर ने आगे दिया ही है कि मोस्ट ऑफ द कलक्रियाज आर थर्स्टी एक्सेप्ट कलक्रिया फॉस. मोस्ट ऑफ द बराइटाज आर थर्स्टी एक्सेप्ट बराइटा म्यूर, बराइटा काब, बराइटा आयो, लाइक दिस. तो पूरा ग्रुप का ग्रुप यहाँ हमारा लर्न हो जाता है कि इस ग्रुप में कौन से मेडिसिन थर्स्टी है और कौन से थर्स्टलेस है. यस. तो इस टाइप से हमें इसे ध्यान में रखना है. तो आगे देखते हैं कि एक्सिस, सॉरी, मोस्ट ऑफ द पॉलीक्रेस्ट आर थर्स्टी एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द पॉलीक्रेस्ट आर थर्स्टी रेमेडीज लाइक सल्फर, नाइट्रोम्यूर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, चाइना, ओपियम, सिलिशिया, वेराड्रम, स्टैमोनियम, सिकलकॉर्न, रक्स्टॉक्स, etc. These are all thirsty remedies. Most angry drugs are thirsty. Most angry drugs are thirsty like Naxomica, Colocin, Hepa, Chamomilla, and Acunin. Most Baritas are thirsty. Most Calcreas are thirsty except Calcrea fos, which can be thirstless also. Most Mercuries are thirsty except Mercor and Merc protoiod, which can be thirstless. Most Kalis are thirsty except Kali fos, Kali ka, and most natrums are thirsty.
except natrium carbonate. Most magnesiums are thirsty but lesser degree of than natrium. Yes, देखो magnesiums are thirsty but natrium से थोड़ा कम है. Natrium without water रह नहीं सकता, इसलिए natriums are thirsty. All snakes are thirsty. Most spiders are thirsty except tarantula, which can be thirstless. Most metals are thirstless except cuprum and plumbum. Yes, देखो metals are thirstless. Why metals are thirstless? क्योंकि मेटल किस कब आप ऐसे पानी में डाल दो वो पानी सोख नहीं करता, इसलिए metals are thirstless. Most acids are thirstless but desired juices and repressing things. कितना इजी वे है, इतने ये 8-10 पॉइंट में कितने सारे ड्रग्स हमारे लर्न हो गए कि इतने ड्रग्स थर्स्टी है, इतने ड्रग्स थर्स्टलेस है. देन पॉलीक्रेस्ट व्हिच आर थर्स्टलेस आर लाइको, पल्सेटिला, अमोनियम म्यूट, चाइना, चैल्सीनियम, सेपिया, एपिस, एंटीटार्ट, नक्स मॉस्किटा, टेरिंटुला एंड कालिका. These are all thirstless remedies. Most, अब ये देखो ये पॉलीक्रेस्ट भी है और थर्स्टलेस भी. Tarantula, Kalika and China can be both thirsty and thirstless also. So these are the simple points to understand. Yes. तो ये इसी टाइप से हम अदर ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे कि डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट के लिए, हॉटी माइल्ड के लिए, एंग्री माइल्ड के लिए, लाइक दिस. इन चिली प्लस थर्स्टी, हॉट प्लस थर्स्टी, चिली प्लस थर्स्टलेस, हॉट प्लस थर्स्टलेस. इस टाइप के आप ग्रुप बनाओ, चार्ट बनाओ, तो आपको इजीली ऑल ड्रग्स लर्न हो जाएंगे कि कौन सा थर्स्टी है, कौन सा थर्स्टलेस है. हमने भी स्टार्टिंग में ऐसा ही किया था, चार्ट बनाए थे और चार्ट पर से हम डेली इसे पढ़ते थे एक बार, तो ये लाइफ लॉन्ग माइंड में बैठ गया कि कौन से ड्रग चिली है, कौन से ड्रग हॉट है, कौन से थर्स्टी है, कौन से थर्स्टलेस है. सो दिस इज द फार्मूला सर ने जो यहाँ दिए हैं. अब आगे सर पूरे केसेस देते हैं और बुक के लास्ट में सर ने रेमेडी रिलेशनशिप भी दी है कि कौन से ड्रग में कौन से ड्रग रिलेशन में ड्रग्स आएंगे और वो भी हॉट कौन से होंगे, चिली कौन से होंगे, तो डिटेल में सर ने दिया है. देन सर ने चिली रेमेडीज कितने हैं, हॉट रेमेडीज कितने, ये भी दिया है और वो भी ग्रुप वाइज दिया है. देन थर्स्टी थर्स्टलेस भी दिया है. तो इसे पढ़ने की जरूरत है, आप इसे पढ़ो तो ऑटोमेटिकली ये पूरा मटेरियल का आपका लर्न हो जाएगा. तो अभी इस बुक का खाली केसेस का पार्ट बचता है, तो हम कल ये केसेस पढ़ेंगे. मोस्टली 2 दिन में हमारा ये बुक कंप्लीट हो जाएगा. कल यस 2 दिन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, तो फ्राइडे को ये बुक कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से हम द एंड ऑफ माय assumptions ऑफ मायज्म स्टार्ट कर देंगे. सो अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी हो तो आप बिंदास बेधड़क पूछ सकते हैं. यस, फर्स्ट we'll make the noise. Yes. Anyone, someone else? किस किस को प्रॉब्लम्स है, किस किस को कोई क्वेरी है? यस राउत जी बोलिए. सर वो चाइना में रिवर्स फ्राउन फेस पे दिखता है, वो कैसे पहचानने का सर? चाइना का फेस बहुत रिंकल्ड होता है और रिवर्स फ्रॉन ऑन द फेस. रिवर्स फ्रॉन मतलब जो चेहरे पे होगा तो ये रिवर्स फ्रॉन आपको दिखेगा ऊपर की ओर.
like हम्म, this. This is the reverse frown on the face. ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। और ये पेशेंट जैसे कि ऐसे ऐसे करेगा चाइना का, अरे यार ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है, ये सब मैं कुछ करने जाता हूं तो मैं ही उसमें क्यों फंस जाता हूं, लाइक दिस, मतलब टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ, हर बार उसे टॉर्मेंटेड फीलिंग आता है, दैट्स व्हाई दैट टॉर्मेंट फीलिंग मेक्स द फ्रॉन ऑन द फेस। यस, ओके सर, थैंक यू सर। या, यस। और किसी को कुछ पूछना है बोलिए फटाफट। सर एक पेशेंट मेरे तरफ आता है, वो आने के बाद में जैसे वो तुकाराम महाराज की जो पोथी रहते हैं ना, उसके जो ये रहते हैं वर्ष, ये कुछ वो बोलता श्लोक। है बीच बीच, हाँ श्लोक्स वगैरह बीच बीच में बोलता है, हम्म, तो उसको क्या कैसे लेना है? तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वो पेशेंट कुछ हब है क्या, हरी नहीं है भक्त। सर, हाँ, नहीं सर, वो अगर बीच वो बीच में वो जाता है ऐसे नहीं, भजन को वो कुछ वगैरह वो कुछ कीर्तन करता है, कुछ क्या बोलते हैं उसे, सत्संग करता है, नहीं नहीं तो सर। फिर इन पेशेंट के लिए वो कॉमन हो जाता है, फिर उसे हमें वो नहीं लेना है। लेकिन पर्टिकुलरली कुछ डिजीज कंडीशन में उसके ये बाहर आता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता नहीं वो जब भी आता है तो ऐसे कुछ न कुछ दोहे बोलता है, है। तो ये कंसिडर करना चाहिए क्या? कंसिडर करना चाहिए, लेकिन कंफर्म करके कि ये किसी के भी साथ बात करता है तो इस टाइप से ही बात करता है क्या, हर दम पहले से ही अगर करता होगा तो फिर नहीं लेना है। और अगर जैसे कि ये उसके घर में ये पूरा इस टाइप का ही माहौल है तो फिर हमें वो छोड़ देना है। लेकिन माहौल नहीं है और पर्टिकुलरली उसी में ये आया है, फिर वो बचपन से भी करता होगा तो फिर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ले सकते घर में नहीं है सर माहौल हैं। उसके? हाँ, फिर ले सकते हैं, वर्सेस मेक्स उसमें ले सकते हैं। या फिर थैंक यू। वो नहीं होगा, वर्सेस मेक्स नहीं लेना है तो रिलीजियसनेस आप ले सकते हो, यस, रिलीजियस एफेक्शंस। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। यस, और डॉक्टर सचिन। लोक आता कमी आहे. तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आज। हेलो हाँ, डॉक्टर खाडे बोलिए। सर, ये जो रेमेडी रिलेशनशिप दी है चार्ट्स में, जैसे अगर हम सिलिशा सिलेक्ट करते हैं तो उसके सामने रेमेडी रिलेशनशिप, तो एक्यूट चार्ट में इसको कैसे यूज करने का? तो हाँ, नाही तेच आहे आतमध्ये नाही गेलो, तेच आहे। तो ये जो रेमेडी रिलेशनशिप का चार्ट सर ने दिया है, इसमें देखो सर ने मोस्टली पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज की रेमेडी रिलेशनशिप दी है, जैसे कि अमोनियम कार्ब, मैं पहले इन्हें म्यूट कर देता हूं। तो अमोनियम कार्ब में जब पेशेंट अमोनियम कार्ब का है और वो पेशेंट एक्यूट कुछ कंप्लेंट्स लेके आया है, तो एक्यूट में फिर अगर उसके थर्मल्स चेंज हो गए और अमोनियम कार्ब वहां पे कवर नहीं कर रहा है, तो हमें अगर उसके थर्मल्स हॉट है तो हॉट में अमोनियम कार्ब को सिमिलर या फिर फॉलोवेल रेमेडी कौन सी है, तो लाइकोपल्स सल्फर। अगर हॉट नहीं है, पेशेंट चिली है, तो चिली में फिर फॉस्फोरस, रेस्टॉक्सिब या कल्क्रिया का बेलाडोना। तो इस टाइप से हमें उसकी रेमेडी रिलेशनशिप देखनी है। फिर उसमें एंटी क्रूड है, आर्सेनिक अल्ब है और मेट है, इनके
यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स रेमेडी रिलेशनशिप में दिए हैं, जैसे कि हॉट अलग है, चिली अलग है। तो इतने सारे ड्रग्स यहाँ पे आते हैं। तो आप जैसे ये नहीं कि अब आर्सेनिक में हॉट में इतने रेमेडीज दिए, लेकिन हॉट में अगर ये रेमेडी, इसमें से कोई रेमेडी का पेशेंट आता है और वो पेशेंट चिली है, तो हम आर्सेनिक एल्बम भी उसके लिए सोच सकते हैं। तो इस तरह से वर्षा हम कर सकते हैं। तो इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पे रेमेडीज का दिया है, लेकिन हमें वही प्रोसीजर की पूरा हिस्ट्री देख के, सिम्टम्स देख के, प्रेजेंट सिम्टम्स देख के हमें इसमें से जिस मेडिसिन से वो मैच हो रहा है वो मेडिसिन सिलेक्ट करना है। यस। और सर एक पूछना था, जैसे इंटीग्रेटेड, अभी आप अनम्यूट करके बात कीजिए। हेलो। हाँ। यस सर, अगर किसी की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो Actually- उसके बाद एक्चुअली खड्डेव जी, आपके यहाँ से साउंड आ रहा है। आपके यहाँ Yes. शायद टीवी शुरू है, उसे ऑफ कर दीजिए। हेलो। हाँ। यस सर, अगर किसी पेशेंट की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब होगी, उसके बाद उसको सोरियासिस की पैचेस आ गए, हेड में हाँ। इरप्शन चालू हो गए, तो ऐसे पेशेंट को अगर वो 7-8 दिन के भीतर ही अपने पास आता है, तो उसका एक्यूट चार्ट से हम ठीक कर सकते हैं सर, या पूरा होलिस्टिक अप्रोच से जाना पड़ेगा? एक्चुअली सोरियासिस इट इज अ क्रॉनिक डिजीज। पर उस शुरुआत के दौर में आ गया तो शुरुआत के दौर में सोरियासिस नहीं आएगा, उसे सिंपल इरप्शंस हो सकते हैं, डर्मेटाइटिस हो सकता है, लेकिन सोरियासिस नहीं आएगा। सोरियासिस इट इज अ क्रॉनिक डिजीज। विटिलिगो आता है सर, कई बार विटिलिगो सडन सेपरेशन होने से तुरंत स्पॉट आता है। विटिलिगो भी क्रॉनिक डिजीज है, वो इतने फास्ट और इतने जल्दी नहीं आएगा। वहां पे जरूर कुछ तभी उन्होंने अप्लाई किया होगा, कुछ इरप्शंस आए होंगे, अप्लाई किया होगा, उसके बाद डिस्कलरेशन हो गया। तो ऐसे केस में होलिस्टिक अप्रोच से ही जाना है सर? यस, इस ऐसे केसेस में आपको कंप्लीट केस लेके जीसीएस ही देना है, एक्यूट रेमेडी नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। यस डॉक्टर नरेश, आपने भी हैंड राइज किया था। यस डॉक्टर सचिन, आपको कुछ पूछना है? नो सर। ओके। थैंक यू सर। यस डॉक्टर रेखा खैरना, नींद हो गई क्या कंप्लीट? हाँ डॉक्टर नरेश बोलिए। नहीं सर, वो ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। सर वो नींद आ रही थी। सर हाँ। एक्यूट सिलेक्शन कोल्ड चिल्ड्रंस के लिए आप ऐसे ही ले सकते हैं क्या सर? हम अगर किसी ने हमको पूछा तो विदाउट पेशेंट को देखे? हाँ, विदाउट पेशेंट को देखे, खाली आपको पूछना पड़ेगा एक्टिविटी थर्मल थ्रस्ट एक्सिस कैसा है, और उस पर से फिर चार्ट पर से आपको मैच करके मेडिसिन देना है। ओके सर, थैंक यू सर। तो होम्योपैथी इतनी इजी है ना कि होम्योपैथी आप यहाँ बैठ के वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी कंट्री का पेशेंट क्योर कर सकते हैं यहाँ बैठ के। इसीलिए हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया है कि आप जूम पे उसकी हिस्ट्री लो और मेडिसिन भेज दो, देन जूम पे ही आप उसके फॉलोअप लेके पेशेंट क्योर कर सकते हैं। तो ये जब से कोरोना आया ना, तो ये कोरोना की वजह से, मतलब कोरोना को ही एक्चुअली धन्यवाद देना पड़ेगा कि कोरोना की वजह से इतने सारे ओपनिंग्स हमें मिले कि हम ये भी कर सकते हैं। यस, कोरोना में हमने ऑनलाइन पेशेंट देखे। कोरोना जैसे मोर डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस, हाई मोर्टेलिटी वाली डिजीजेस हमने अगर ऑनलाइन पेशेंट अच्छे किए, देन म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट ऑनलाइन अच्छे किए, तो
बाकी कोई भी पेशेंट अच्छे कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन से। इसलिए आप घर पे बैठ के कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। करोड़ों का, लाखों का जगह लो, शॉप लो, क्लिनिक सेटअप करो, मेडिसिन लो, क्लिनिक में जाके बैठो, टाइम वेस्ट करो, कोई जरूरत नहीं। आप घर पे बैठ के अपने काम करते करते, किचन में खाना पकाते पकाते पेशेंट से बात कर सकते हैं ऑनलाइन। यस, ऑनलाइन क्लास भी कर सकते सर। ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चांस हमारे लिए है, और हमारे लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है। आप यहाँ बैठ के पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में से पेशेंट देख सकते हैं। तो आप लोग बिना कुछ सोचे, ज्यादा माइंड को तकलीफ न देते हुए ये चालू कर सकते हैं। यस, अगर लेडीज डॉक्टर्स को प्रॉब्लम है सेटअप करने में, घर वाले करवा नहीं देते हैं, तो घर से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? यस। अभी किसी ने बोलना ही नहीं कि नहीं मुझे क्लिनिक स्टार्ट करना है, ये करना है, वो नहीं। बस नेट पे जाओ और अपने एडवर्टाइज डाल दो, ऑनलाइन कंसल्टेशन टाइम डाल दो। खाली इतना है कि आपको कंसल्टेशन फीस ज्यादा डालना पड़ेगा तो पेशेंट आएंगे। जी सर। सर सर ये कहाँ से करना पड़ता है, ऑनलाइन करना है तो? ऑनलाइन करना है तो उसके लिए ऐप होते हैं। हाँ, आपको पहले और उसके वेबसाइट बनानी पड़ेगी, बनाना पड़ता है है। ना? यस, आपका पूरा डिजिटल मीडिया लाइव पेमेंट देना करना पड़ता है पड़ेगा। सर उसमें? नहीं नहीं, पेमेंट की कोई जरूरत नहीं, सब फ्री में होता है। बनाने वाले को चार्जेबल पेमेंट है, नो नो नो, बनाने हाँ वाले को हाँ। पेमेंट देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। बाकी ये सब फ्री है, गूगल पे, नेट पे सब नहीं फ्री तो मिलेगा। हाँ यूट्यूब फ्री है, इंस्टा फ्री है, फेसबुक फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, सब फ्री है। खाली आपका आपके पास नेट होना जरूरी है। सही है अगर सर। आपके पास नेट है, सर्वर है, तो आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। महीने के 100-200 का रिचार्ज करवा लो और पैसे कमाओ। कितनी अच्छी सुविधा आई है अभी, है ना? पहले कितना पैसा, डॉक्टर बोले कि पहले इन्वेस्टमेंट सामने आ जाता था कि अरे फिर दवाखाना डालने के लिए इतना पैसा लगेगा, जगह देखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, फर्नीचर, ये वो। अभी कोई जरूरत नहीं, है ना? घर पे बैठो, एक आधा घर पे पर्दा लगा दो, एक आधी वॉल पे, और शुरू ऑनलाइन। एक लैपटॉप होना जरूरी है अगर आप जूम मीटिंग पे, जूम पे पेशेंट देखना चाहते हो। आजकल तो मोबाइल इतने अच्छे आ रहे हैं कि अब इसकी उसकी भी जरूरत नहीं है, लैपटॉप की। तो बहुत इजी हो गया, बहुत सिंपल हो गया प्रैक्टिस करना होम्योपैथी। यस, और होम्योपैथी तो सिंपल है, ये इजी है, सबको मालूम है ना? बहुत हार्ड है सर, पर आप मिल गए हैं तो ऐसा लगता है कि इजी हो जाएगा। यस सर हार्ड है लेकिन इंटरेस्टिंग है, यस, अच्छा भी लगता है प्रैक्टिस में, इंटरेस्टिंग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें है ना एक ऐसा मेंटल इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है अदर पैथीज के इससे। अगर आप सोचेंगे तो अदर पैथीज में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आप एक पेशेंट बिल्कुल क्योर सही कर सर। लो, आपको इतना मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा कि अरे यार ये कहीं नहीं हुआ और मैंने इसे क्योर कर दिया। हाँ ये सर। बात होती है, Satisfaction, ये sir. बात होती है सर कि जब पेशेंट को अच्छा लगता है तो अपने को हम्म। इतना अच्छा लगता है कि मैंने कुछ तो कर दिखाया। यस, और सर एक तो भी पेशेंट अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है। सर मैंने मेरे हस्बैंड के साथ में एलोपैथिक प्रैक्टिस की थी सर, 5-6 साल की थी। मेरे पास पेशेंट ज्यादा थे लेकिन उतना मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। अभी बहुत अच्छा लगता है, पेशेंट थोड़े से कम है लेकिन बढ़ भी रहे हैं।
अच्छा भी लगता है और पहले से बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है सर। आप दो और आगे भी पेशेंट मिलेगा सर। आप 2 पेशेंट क्योर करो, आपको 20 पेशेंट यूं मिल जाएंगे। मिल जाएंगे हाँ सर। सर। यस सर। अभी कौन से मैडम ने बात की? सर मैं हूँ सरिता गेडाम। गेडाम, ओके। यस। यस तो सर उस दिन हाँ हाँ, राइट। यस डॉक्टर नरेश। नहीं, हैंड रेज वो अपने आप से हो रहा है सर, किस तो हुआ है। मन में से आपको कुछ तो भी पूछना है, इसलिए हो रहा होगा। सही है सर। चलो, तो शुड आई स्टॉप हियर? यस, थैंक यू सर। यस, Thank you, thank you, sir. थैंक यू, Thank you very much, Thank you. sir. Thank you very much, sir. यस, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय, सी यू, Okay. Thanks. बाय।